Students, this is the first topic of class 9th IHSC board, and in physics the topic 1 is units and measurement. So you can see that the topic is very basic, that is units and measurement. Actually in physics, whenever we will start reading and understanding physics, we will deal with physical quantities. So physical quantities are those physical parameters which can be measured. अगर कहीं भी quantities लिखा हुआ है ना, तो quantities का मतलब होता है those which can be measured. So actually in physics we have two things. One is physical quality and the other is physical quantity. So there are various things that cannot be measured, that can only be understood. These are called as physical qualities, like inertia, while many other things are there which can be measured. So those things that can be measured are called as physical quantities. Actually there are 7 out of many physical quantities we discuss in physics. There are basic physical quantities which are 7 in number, 7 fundamental quantities which are included and defined as fundamental quantities. These are length, mass, time, and temperature, and electric current, and amount of substance, and luminous intensity. So there are 7 physical quantities which are considered as फंडामेंटल क्वांटिटीज़. और बाकी जितनी क्वांटिटीज़ होंगी फिजिक्स में, बाकी जैसे हम फोर्स पढ़ेंगे, वर्क, एनर्जी, पावर, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, एनीथिंग विच we study in physics can be derived in terms of these 7 physical quantities. So out of these 7 physical quantities, you need to deal with in 9th class ICSE board. There are 3 physical quantities: length, mass and time, that we have to discuss in detail. So first of all, let us know what is length. तो आप अपनी डेली लाइफ में हम लोग लेंथ के बारे में बहुत सारा डील करते हैं. जैसे कुछ भी मेज़र करना हो, मेज़रमेंट में हम यूज़ करते हैं, लेंथ की बात करते हैं कि इतने लेंथ का होना चाहिए, ये मीटर है. आप क्लोथ्स कहीं ख़रीदने जाते हो तो आपको लेंथ एक पीस कट करके देते हैं. आपकी हाइट अगर आपको मेज़र करनी हो तो लेंथ आप मीटर और सेंटीमीटर में यूज़ करते हैं. इवन कई बार फिट में मेज़र करते हैं. ऐसे फीट और फुट जो भी होता है, ये पाउंड सिस्टम में मेज़र, FPS सिस्टम एक होता है, उसमें मेज़र करते हैं. तो हम लोग कई जगह देख सकते हैं कि मीटर को कैसे मेज़र करते हैं. तो लेंथ की यूनिट मीटर होती है. मीटर स्केल आप लोगों ने देखा होगा. जब भी आपको कोई, मान लो ये एक लाइन है जिसके लेंथ को मेज़र करने को बोला जाए, तो आपके पास जो भी मीटर स्केल होगा उसके ज़ीरो को इस लेफ़्ट एंड से कोइंसाइड करेंगे, और बाकी इस वाले एंड को जिस पॉइंट से ये मैच करेगा उसके आसपास के नंबर को आप इस ज़ीरो वाले नंबर के बीच में जो गैप है उसको काउंट करके उसकी लेंथ को बता सकते हैं. सो यूजुअली वी यूज़ मीटर एज ए यूनिट ऑफ लेंथ. तो मीटर की डेफिनेशन सबसे पहली बार किस पर्टिकुलर लेंथ को मीटर कहा गया था. तो फर्स्ट टाइम it was defined as, a meter was defined as, I think in 1980s it was defined as, this is the distance traveled by light in vacuum in, this is the distance traveled by light in vacuum in 1 over, I think 299 792458 of a second. So this is the distance traveled by light in vacuum in 1 by 299792458 second. So into speed of light in vacuum is actually, speed of light is 299792458 meter per second. So this second and this second cancels out and we get this as 1 meter. तो अब इसमें what is important is that हमें ये पता करना है कि भाई लाइट को ही रेफरेंस क्यों लिया गया.
हम किसी और भी ऑब्जेक्ट को पता कर सकते थे कि इतने पर्टिकुलर, ना ही एक सेकंड, मीटर में कितना ट्रैवल कर जाए। तो लाइट को ही हम लोगों ने कंसिडर इसलिए क्या किया क्योंकि लाइट जो है ना, लाइट की स्पीड जो वैक्यूम में होती है वो किसी रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो मैं ये कहता कि लेटस, ऐसा होता कि डिफ़ाइन किया जाता है कि 1 मीटर वॉज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए कार इन पर्टिकुलर फ्यू सेकेंड्स। तो ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जर्वर, मान लो वो ऑब्जर्वर उस कार में ही बैठा है और वो कार अगर चल भी रही है तो वो तो कहेगा कि भाई पर्टिकुलर सेकंड में कार ने कोई डिस्टेंस ट्रैवल ही नहीं किया। ऐसा भी हो सकता है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन से कोई दूसरी कार आ रही हो तो पर्टिकुलर सेकंड में जो स्पीड होगी कार की वो जो हम लोगों ने डिफ़ाइन किया है उससे ज़्यादा रही होगी। तो हो सकता है कि उस पर्टिकुलर सेकंड में वो कार ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लाइट की जो स्पीड है उसके अलावा किसी भी चीज़ को यूज़ करते तो हम जब जहाँ से देख रहे होते तो अलग अलग डेफिनेशन, अलग अलग वैल्यूज़ आती, तो मीटर की पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आती। सो स्पीड ऑफ लाइट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन और मोशन ऑफ ऑब्जर्वर। इन दैट्स वाई वी टेक speed of light as a reference parameter to define the unit of length। तो यहाँ से हम लोग यूज़ करते हैं। सो हम लोगों ने ये देखा कि भाई ये लेंथ की यूनिट मीटर होती है, ये हम लोगों ने समझ लिया है। अभी कुछ चीज़ें फैक्ट्स के तौर पर आपको याद रखनी है, इसमें बहुत समझने की ज़रूरत नहीं है। मीटर के बहुत सारे पार्ट्स भी हैं, जैसे सब यूनिट्स हैं, मल्टीपल यूनिट्स हैं, नॉन मेट्रिक यूनिट्स हैं, स्मॉलर यूनिट्स हैं। सब यूनिट्स का मतलब कि मीटर से छोटे है ना, दीज आर द यूनिट्स विच आर लेस देन 1 मीटर। सो दिस इज डिफाइंड एज in this subunits in your syllabus 4 subunits are defined. One is centimeter, that is 1/100th of a meter, 1/100th of a meter, 1/100th of a meter, 1 सेंटीमीटर। कई जगह हम लोगों ने स्केल में देखा होगा कि सेंटीमीटर के मार्क्स बने होते हैं, दैट इज़ 1/100। साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है कि 1/100 को लिखा जाएगा 10⁻² मीटर। ऐसे ही millimeter is also a sub unit of meter. Millimeter means 1/1000 of a meter, that is 1,000th of a meter. कई बार आपने देखा होगा कि सेंटीमीटर की जो स्केल होती है उसमें मिलीमीटर के भी निशान बने होते हैं। तो वो मिलीमीटर, वो दो छोटे छोटे जो गैप्स होते हैं ना, अगर हम देखें तो ये अगर एक मीटर स्केल है तो मीटर स्केल में पहले तो ये 0 होता है, यहाँ पर मान लो ये 1 सेंटीमीटर है, मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, मान लो 3 सेंटीमीटर है, और ये 4। ये जो मेज़रमेंट है नॉट टू स्केल है, हमने ऐसे कुछ इसको समझ लिया है। तो अगर ये स्केल एक है तो इसके बीच में आपने देखा होगा कि 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। So these are how many gaps? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So the value of one gap, if this is centimeter, 1 centimeter, 1 centimeter, 2 centimeter, 3 centimeter, 4 centimeter, then value of one gap is 1 millimeter. So actually 1,000th of a meter is called as 1 millimeter. That is written as 10⁻³ meter in scientific notation. Micrometer, micron, that is 1/1000 part of a millimeter. In fact, this is 1/10⁶, that is 1 millionth of a meter. माइक्रोन भी कहते हैं इसको। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो कोरोना वायरस है उसका जो साइज़ है वो दैट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू माइक्रॉन्स, इसीलिए उसको हम लोग जो वो लगाते हैं मास्क लगा करके उसको हम रोक सकते हैं। इवन जो क्लॉथ्स होते हैं, जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं, उनके बीच का जो गैप होता है अगर वेल वुमेन है तो उसमें जो गैप है वो भी माइक्रोन्स के ऑर्डर का होता है। ऐसे अनदर सब यूनिट इज़ नैनोमीटर। Nanometer is 10⁻⁹ 1 billionth of a meter. 1 billionth of a meter is called as a nanometer.
that is written as 10 raised to the power minus 9 in terms of scientific notation. Now suppose let us discuss something about non-metric units of meter. Non-metric means we cannot measure these distances. These are either very bigger units or very smaller distances, so that we are unable to measure these distances. We only define, and in some other terms we measure, and we define simply this as a bigger, this is a kind of representation of very big distances or very small distances. So there are two non-metric units of meter. One is in terms of large distances, like called as bigger units, and the other is called as smaller units. So bigger units में हम लोग तीन बातें पढ़ेंगे. एक astronomical unit, the other is light year, and the third is parsec. And in smaller units we will discuss angstrom, nanometer और Fermi. ये अभी हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें डिस्कस करेंगे.